Good afternoon, class. Am I audible to you all? Good afternoon, everyone. Okay, so every one of you joined it. So in this week, you all have theory classes or not? Okay. So tree has been started in lecture classes. In previous week, sir has started tree data structure. Okay. So what was taught in the tree data structure part? Okay. So sir has just started from binary search tree. All of you have the basic idea of tree data structure, like what is tree traversal and the basic characteristics of the tree, etc. BFS, DFS, pre-order, in-order traversal, etc. All these things. You have any idea? Okay, so today we are going to have a basic idea of tree and its coding part. In next class, we are going to start the binary search tree. Okay. Okay, Kishan. So in order traversal, post order traversal means all of you have studied about all that. A little bit. Okay. So no problem. So what we have studied yet, like हम data structure पढ़ रहे थे ना. So all of you have idea that a data structure is a way of organizing and storing data so that it can be accessed and modified efficiently. So basically data structure is used for organizing and storing data so that we can fetch the data efficiently for our use. Okay, binary tree, binary search tree. Okay. Okay. So in data structure part, we have two parts like linear data structure and non-linear data structure. And we have covered the linear data structure part like array, linked list, stacks, queue, etc. Okay. Because what is linear data structure? Means in linear data structure, data elements are arranged sequentially, one after another in a single line. Okay. So we have studied that linked list, stacks, and queue that are on linear data structure. So from today onwards, we are going to start the non-linear data structure part. Okay. So what is non-linear data structure? Any idea? Means word से ही पता चल रहा है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स डेटा आर नॉट अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट line or not sequentially arranged. Elements are connected in various patterns like branches of a tree or nodes, etc. Okay. Okay, so this is non-linear data structure part. So what are the examples of non-linear data structure like tree and graph?
we are going to study these two like tree and graphs. So today we are going to start the tree part. Tree, that one is non-linear data structure. Okay. Yes, I am just going to share the screen. Okay, so my screen is visible to you all. Is my screen is visible to you all? Okay. Okay. So we are going to start tree. So what is tree? लाइक इन जनरल हमने सुना है ट्री क्या होता है जिसमें रूट्स होते हैं उसके ब्रांचेस होते हैं लीव्स होते हैं एक्सेट्रा सो in our data structure it is also the same kind of tree where we have like true root, then we have its child connected with edges. So this is the simple structure of the tree. Okay, so we can say that tree data structure is a hierarchical structure that is used to represent and organize data in the form of parent and child relationship. Okay, where it consists of nodes. Here all these are nodes and connected with edges. The topmost node is called the root, and each nodes may have their children, and each children is connected with the edges. Okay. So there are some basic terminologies that are used in tree data structure that you all should know about that. Means हम in general पढ़ते टाइम पे हम यही terminologies use करते हैं. Okay. So parent node, every one of you know about these terminologies. Okay, I am going to give a quick review of this. Like what is parent node? The node which is an immediate predecessor of a node is called the parent node. Means parent node सबको पता है. Like किसी भी child node का जो just predecessor होता है वो parent node होता है. Okay, and जो parent nodes के जो भी उसके descendant होते हैं या जो भी उससे connected होते हैं वो उसके child node होते हैं. Okay, root node, every one of you know that the uppermost node is known as the root node of that tree. Leaf node or external node is the lowest node after the node which don't have any child node as its descendant. So this is known as the child node. Okay. Then ancestor of a node and descendant of the node. What is ancestor? Ancestor means like if we are going to find the ancestor of D, means B and A is the ancestor of D. Means जब हम D किसी भी नोड का अगर एंसेस्टर फाइंड करना चाहते हैं तो जब हम उससे रूट नोड की तरफ मूव ऑन करेंगे तो जो भी बीच में हमें नोड्स मिलते हैं वो सारे हमारे उस नोड्स के एंसेस्टर होते हैं. मींस डी के एंसेस्टर जो होंगे वो बी एंड ए होंगे. एंड सिमिलरली अगर हमें डिसेंडेंट फाइंड करना है किसी भी नोड के तो हम उसके टूवर्ड्स लीफ नोड के साइड मूव करेंगे एंड जो भी नोड हमें मिलेगा वो हमारा डिसेंडेंट होगा. मींस द डिसेंडेंट्स ऑफ द बी इज डी ई आई जे एंड के. ओके, तो एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट इज क्लियर. Okay.
नाउ नेक्स्ट इज सिबलिंग। सिबलिंग तो सबको पता है, जैसे हम होते हैं, हमारे कजिन्स होते हैं जो कि सेम लेवल्स पे होते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमसे एक हायर लेवल पे होते हैं, बट जो हम है हमारे कजिन्स है वो सारे सिबलिंग्स होते हैं। ओके, देन लेवल ऑफ अ नोड। लेवल ऑफ अ नोड हम बेसिकली जो रूट नोड होता है उसे लेवल 0 से क्या कहते हैं शो करते हैं। आफ्टर दैट जो भी हमारा उसके नेक्स्ट लेवल पे आएगा वो लेवल 1, देन लेवल 2, देन लेवल 3। ओके, so level 0 is given to the root node. After that the next level is known as level 1, then level 2, then level 3. After that, what is the depth of a node and height of a node? Okay, so what is the depth of a node? Depth of a node can be defined as the number of edges in the path from the root of the tree to the node. Okay, like if we want to find the depth of d, so हम क्या करेंगे, रूट से उस नोड तक में जितने भी एजेस हमें मिलेंगे मूव ऑन करते टाइम, वो हमारे क्या कहते हैं डेप्थ ऑफ द नोड हो जाएगा। मींस व्हाट इज द डेप्थ ऑफ डी? वी आर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रूट, लाइक डी से हम बी पे गए, देन बी टू ए, सो दिस इज द रूट ऑफ द ट्री, so there is one edge and two edge, so depth of the node d is 2. Okay, and what is the height of the height of any node? If we want to find the height of any node, so how can we find the height of any node? So basically height of any node can be measured by using the number of edges on the longest downward path from the node to a leaf. Okay, so if we want to find the height of this node like b, then we are start moving towards down, means we are moving towards the leaf of that node. जब हम b से leaf is I, so हम जब b से I की तरफ move on करेंगे, तो so here we are getting 2 edges, so the height of the node b is 2. Okay, so this is the concept of depth and height. मीन्स डेप्थ में हम रूट की तरफ मूव ऑन करते टाइम हमें जितने भी एजेस मिलेंगे वो हमारे डेप्थ होते हैं, और हाइट के टाइम पे हम उस रूट से लीफ की साइड मूव ऑन करेंगे और हमें जितने भी एजेस मिलते हैं वो हमारे क्या कहते हैं हाइट ऑफ द नोड होता है। ओके, so this is two major concept of tree data structure. Okay, so all of you getting it, like what is the height of a node and depth of a node? Is it clear? Class, are you hearing? Are you getting the concept of height and depth? Okay, so now height of a node. Okay, how can we find the height of a tree? Anyone have any idea? Height of a tree, मतलब मैंने आपको बताया ना हाइट ऑफ अ नोड कैसे फाउंड करते हैं, हाइट ऑफ अ ट्री कैसे फाइंड करेंगे? Maximum leaf means the number of leaves you want to say. Just write your answer in the chat box. Number of edges from root to leaf node. Okay, yes. Okay, so if we want to find the height of a tree, we just start moving from root node to the longest leaf node, means longest path of the leaf node. सबसे lowest हम leaf node find करेंगे, means जैसे ये भी हमारे leaf node है, but हम lowest leaf node को find करेंगे और root node से वहां तक traverse करेंगे. So the number of edges we found on that path is the height of the tree. Okay, okay. Now the what is the number of edges in a tree? Number of edges, like here we have the edges that connected the one node to another node, no? So how can we calculate the number of edges? So the edges can be calculated like that. If a tree has n nodes, then it will have n minus 1 edges, क्योंकि हर एक नोड से एक एज तो कनेक्टेड होता है, बट यहाँ रूट नोड्स पे हमें कोई भी एज कनेक्टेड नहीं होता. So we have n number of nodes, then we have n minus 1 number of edges. Okay,
And now next is the degree of a node. What is degree of a node? The degree of a node can be calculated as like the total count of subtrees that is attached to that node is called the degree of a node. Okay, like B से हमें कितने सब ट्री अटैच्ड है, एक ये सब ट्री हो गया एंड एक ये सब ट्री हो गया. इट मीन्स द डिग्री ऑफ अ नोड B is 2. Okay, similarly the degree of node C is 1, 2 and 3. So this is known as the degree of a node. So what is the degree of a tree? जैसे डिग्री ऑफ अ नोड हम क्या करते हैं, उससे कितने सब ट्री अटैच्ड है वो काउंट करते हैं, वो उस डिग्री, वो नोड की डिग्री होती है. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अ ट्री? Anyone? How can we calculate the degree of a tree? As I told you now, how to calculate the degree of a node. Direct connection to the node. No, how it's possible? Number of total subtree. No. Number of children. No. Just see. जैसे अगर मान लीजिए हमने फाइंड किया बी, बी का वो क्या कहते हैं डिग्री हो गया हमारे पास 2 क्योंकि इससे दो सब ट्री अटैच्ड है. सी की डिग्री हो गई 3. सो सिमिलरली हम हर एक नोड की डिग्री फाइंड करेंगे अपने ट्री में, लाइक डी ई आई जे के सबकी डिग्री फाइंड कर लेंगे एंड द मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑल द नोड्स मीन्स सारे नोड्स की डिग्री को हम देखेंगे, सबसे मैक्सिमम डिग्री जिस भी नोड की होगी वो उस ट्री की डिग्री हो जाएगी. ओके, लाइक यहाँ आई की डिग्री 0 होगी क्योंकि इससे कोई भी सब ट्री नहीं अटैच्ड है. सिमिलरली जे की डिग्री 0, के की भी 0, एफ जी एच की डिग्री 0 होगी. डी की डिग्री 2 होगी, ई की डिग्री 1 होगी क्योंकि एक सब ट्री है, सी की डिग्री 3 होगी, बी की डिग्री 2 होगी क्योंकि दो सब ट्री है, और ए की भी डिग्री 2 होगी. सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ ट्री हियर? द डिग्री ऑफ ट्री इज 3 क्योंकि मैक्सिमम डिग्री जिस जिस भी नोड की होती है वो उस डिग्री उस ट्री की डिग्री होती है. Okay, so the degree of this tree is 3. Are you getting it? Is it clear how to calculate the degree of a tree? Okay. Okay. And next is internal node. A node with at least one child is called internal node. Internal node means ये तो हमारे जो होते हैं वो लीफ नोड्स होते हैं, उनके अंडर में जो भी आते हैं वो सारे इंटरनल नोड्स होते हैं जिनके की या तो मिनिमम वन चाइल्ड होनी चाहिए, तो हम उसको सिंपली कह सकते हैं कि वो इंटरनल नोड्स होते हैं. लाइक ऑल दीज आर द इंटरनल नोड्स. एंड सब ट्री क्या होता है? Here this is subtree. Subtree is similarly any node of the tree along with its descendant. Okay, कोई भी जो भी हम किसी भी नोड्स का डिसेंडेंट जैसे जो भी फाइंड करते हैं वो हमारा एक सब ट्री बना लेता है. सो सिमिलरली दिस इज द सब ट्री ऑफ दिस. This is also a kind of subtree. This is also a kind of subtree for A. So simply this is the subtree concept. Okay, so these are the basic terminologies that we can use in tree data structure. So all this are clear to you all? Ma'am, degree once more. Okay. सो डिग्री सिंपली डिग्री ऑफ अ नोड तो समझ आया कि मतलब डिग्री ऑफ अ नोड फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि उससे कितने चाइल्ड्स अटैच्ड हैं. ओके, सो दिस द बी की डिग्री हो जाएगी 2 क्योंकि इससे दो चाइल्ड या दो सब ट्री अटैच्ड हम कह सकते हैं. सो ये एक नोड की डिग्री हो गई. बट सिमिलरली अगर हम सी की डिग्री फाइंड करेंगे तो 3 होगी. तो डिग्री ऑफ अ ट्री कैन बी कॉल्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ऑल द नोड्स डिग्री. ओके, तो यहाँ पे हमने जैसे इसकी फाइंड की डी की तो इसकी डिग्री 2 आई, बी की डिग्री भी 2 है, ए की डिग्री भी 2 है, बट सी की डिग्री 3 है. तो सारे में मैक्सिमम डिग्री क्या हुई? 3 हुई ना. सो द डिग्री ऑफ दैट ट्री इज 3. ओके, इज इट क्लियर शशांक?
Okay. So simply this is an example of a tree data structure in real life. Like हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ हम क्या देखते हैं, एक सीईओ होता है, सीईओ होता है, देन उसके अंडर में मैनेजर्स आते हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, मतलब वहाँ पे जो भी होते हैं, सेल्स का काम हो रहा है, कहीं पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है, मार्केटिंग के काम हो रहे हैं, तो वो सारे मैनेजर्स, मतलब सबके लिए अलग अलग मैनेजर असाइन होते हैं। फिर हर एक मैनेजर के अंडर में डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स होते हैं. ओके, so this is the simple a diagram to show the tree data structure in real life. Okay, now there are some types of tree we have. The first one is like general tree, तो सबने सुना होगा. इन जनरल ट्री मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें कितने भी नंबर ऑफ नोड्स हो, हर एक नोड्स के कितने भी चाइल्ड हो, कुछ में कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होता है. ओके, सो दिस इज नोन एज द जनरल ट्री, लाइक हम हमारे पास जैसे होता है. ओके, बट नेक्स्ट व्हाट वी हैव, बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री तो आप लोगों ने पढ़ा है, मीन्स बाइनरी ट्री का आइडिया है. व्हाट इज बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री आइडिया है? यस. सो इन जनरल ट्री जैसे हमारे पास कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होता, बट वी हैव सम कंस्ट्रेंट इन द बाइनरी ट्री. ओके, यस, पेरेंट्स शुड नॉट हैव मोर देन 2 नोड्स. यस. ओके, सो yes, so binary tree, a binary tree is a hierarchical data structure where each node has at most 2 children. At most means maximum एक नोड के पास 2 चिल्ड्रन होने चाहिए. मिनिमम आप 0 1 कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 2 होने चाहिए. अगर 2 से ज्यादा चाइल्ड हुए तो हम वी कांट से दैट दिस ट्री इज अ बाइनरी ट्री. ओके, so there are some types of binary tree like full binary tree, complete binary tree, perfect binary tree, balanced binary tree and pathological binary tree. So ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री पता है आप लोग को? All of you have idea about the different types of binary tree? No man. Okay, so just see all this. First one is full binary tree. Okay, simply full binary tree is like, in full binary tree every node has either 0 or 2 children. Okay, no node has only one child. फुल बाइनरी ट्री मतलब इन सिंपल, इन जनरल लैंग्वेज जैसे हम कहते हैं ना, फुल है. फुल मतलब बाइनरी ट्री है तो मैक्सिमम उसके 2 ही चाइल्ड होने चाहिए, तो हमें पता है. अब उसमें फुल लगा हुआ है, तो फुल से कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब वो फुल होना चाहिए, तो मतलब मैक्सिमम या तो 2 हो या तो एक भी चाइल्ड ना हो उसके पास. ओके, सो यहाँ पे जैसे इसके पास 2 चिल्ड्रेन है, फिर इस नोड के पास भी 2 चिल्ड्रेन है, और इसके पास 0 चिल्ड्रेन है. सो दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री. बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस नोड के पास एक चिल्ड्रेन है, so this can't be acceptable for full binary tree. So this is a full binary tree, but this is not. Okay, the next one is complete binary tree. In complete binary tree, all labels, like this is label 0, label 1, label 2, label 3, so all labels are completely filled except possibly the last label, which is filled from left to right. Okay, in complete binary tree मतलब जैसे हम फिल करते हुए आ रहे हैं, तो हमारा लास्ट लेबल तक मीन्स सारे लेबल्स फुल्ड होने चाहिए. फुल मतलब मैक्सिमम उसके 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 चिल्ड्रंस होते हैं, तो 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए. बट मैक्स टू मैक्स इतना हो सकता है कि इसमें जो भी लास्ट लेबल होगा उसको हम लेफ्ट टू राइट फिल करना स्टार्ट करेंगे, और जितने तक फिलअप हो पाएगा उतने तक करके छोड़ देंगे. सो दिस इज द कंप्लीट मीन्स हम एक तरफ से कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं और लास्ट लेबल में लेफ्ट टू राइट फिल करेंगे, और जहां पे भी हमारे नोट्स खत्म हो जाएंगे वहां पे हम छोड़ देंगे. बट ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे 2 फिलअप किया और यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहीं पे छोड़ दिया. सो दिस कांट बी द कंप्लीट बाइनरी ट्री. ओके, so this is the concept of full binary tree and this is the concept of complete binary tree. Is it clear?
Is it okay? Okay. So complete and full binary tree समझ आ गया ना? Okay. So next one is perfect binary tree. Okay. So what is perfect binary tree? Perfect binary tree can be called as like in this all internal nodes have exactly two children. Means ये भी हम internal nodes मैंने बताया था कि leaf node से just एक लेवल अप वाले होते हैं internal nodes. तो internal nodes जो भी होते हैं इसमें वो exactly two children होने ही चाहिए उनके पास. And all leaf nodes are at the same level. Okay. Here we can see this see that na this is the like leaf nodes and all leaf nodes are at the same level and all the internal nodes have two children. So this is the concept of perfect binary tree. Okay. And the next one is balanced binary tree. So what is balanced binary tree? In balanced binary tree, the height difference between the left and right subtree is at most 1. Okay. बैलेंस बाइनरी ट्री में जो भी है हाइट डिफरेंस मीन्स लेफ्ट सब ट्री का हाइट डिफरेंस और राइट सब ट्री के हाइट डिफरेंस में सिर्फ वन का डिफरेंस होना चाहिए. अगर उससे ज्यादा या कम है देन इट कांट बी द बैलेंस्ड बाइनरी ट्री. ओके. सो लाइक यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और यहाँ पे हाइट ऑफ राइट सब ट्री. हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री यहाँ पे 2 इस नोड के लिए और यहाँ पे 1. 2 - 1 1. सो क्या होगा यहाँ पे ये 1 हुआ तो ठीक है. फिर यहाँ पे अगर हम इस नोड के लिए हाइट फाइंड करेंगे तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1 - 1 0. यहाँ पे तो 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0 है. सो यहाँ पे मैक्सिमम जो भी हमें डिफरेंस मिला वो 1 का मिला. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज बैलेंस्ड बाइनरी ट्री. अगर हमें मैक्सिमम डिफरेंस 2 का मिल जाता मीन्स अगर हम यहाँ पे एक और नोड अटैच करते तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का हो जाएगा. सो दिस कांट बी अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज पैथोलॉजिकल और डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री. डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर एक नोड्स के पास एक ही चिल्ड्रन होना चाहिए. सो ये नोड है उसके एक चाइल्ड है, उसका एक चाइल्ड है, उसका एक चाइल्ड है. ये नोड है इसका एक चाइल्ड, एक चाइल्ड, एक चाइल्ड. बट यहाँ पे हमने क्या देखा, इस नोड के पास 2 चाइल्ड है. सो दिस कांट बी द डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री. बट दिस वन एंड दिस वन इज द डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री. Okay, so these 5 are the types of binary tree. Okay, so all these are clear. Okay, so these are some basic concepts. Now we are going to move towards the programming part. Okay, so my screen is visible to you all. Okay, so हमने देखा ना कि जैसे ट्री में क्या होता है कि हमारे पास नोड्स होते हैं और नोड्स की वैल्यू होती है और उसके चाइल्ड होते हैं. ओके. सो सिंपली अगर हम कोडिंग में देखेंगे तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ नोड ऑफ अ ट्री. तो simply the representation is like class node and a node. What are the things that a node have? Like we are defining a function in it where we just write self and we have data value for that node and we have self dot data where we just assign the value for that node
And next what we have, self dot children, and here we just create an empty list, okay, where we are going to store the value of the children. Okay, so this is simple representation of a node in a tree. ट्री में मैंने बोला ना कि हर हमेशा ट्री के पास क्या होता है, हर एक नोड्स होते हैं, नोड्स के पास चिल्ड्रन होते हैं और उसकी खुद की वैल्यू होती है। तो उसमें दो ही चीज होती है हमारे पास, एक तो हम पहले उसकी डेटा वैल्यू असाइन करते हैं और दूसरा हम एक एम्प्टी लिस्ट बना क्रिएट करेंगे, मीन्स जिसमें हम उस नोड के चिल्ड्रन की वैल्यूज को असाइन करेंगे। ओके, सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट और सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नोड। ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, इज इट क्लियर? मीन्स कैसे हम नोड रिप्रेजेंटेशन करेंगे ट्री में? ओके, so simply I am going to show a program of tree data structure. So all of you getting a idea of tree. Okay. Yes, it is for general tree. मीन्स जनरल ट्री में मैंने सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि हर एक ट्री में होता है यही ना कि हमारे पास नोड होते हैं, नोड्स में हमें वैल्यूज देनी होती है और उसके चाइल्ड होते हैं. So it's just a simple concept to how to represent a node for a tree. Okay, so now यहाँ पे just see how to create a tree. Okay, so like here what we are going to do, we just create a class to represent a tree. Okay, here we are defining a function as I told you earlier, like define in itself value. Here we are going to give the value of that node, and we are here what we are doing, we are just creating a list for storing the values of the children. Okay, for every node we have child, so for that we are creating a list here. Now अगर जैसे हमने एक नोड क्रिएट कर लिया तो हमें उसके चाइल्ड्स क्रिएट करने होंगे ना, क्योंकि उसके चाइल्ड तो होंगे. सो हाउ कैन वी ऐड द चाइल्ड टू दैट नोड? फॉर दैट वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन define add child. So here we are just going to give the child, and self dot children dot append, we know the append function in a list. So by using this we can add this children, this child value to that node. Okay, so this is simply the function for adding the child. And now after adding the child what we are going to do, we are just traversing. मीन्स अगर हम ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करना होगा कि हमें एक नोड बनाना होगा. ओके, नोड पे हमें चाइल्ड उसकी वैल्यू देनी होगी. आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा, उसको ट्रैवर्स करना होगा कि हमने ट्री सही से बनाया है या नहीं, मतलब हम उसका ट्रैवर्सल कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ट्रैवर्सल करेंगे तभी तो हम वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड ऑल दैट. ओके, सो फॉर ट्रैवर्सिंग हम क्या करते हैं, लाइक हमें पता है कि हमारे ट्री में लेबल्स होते हैं. द रूट इज गोइंग टू गिव द लेवल 0, आफ्टर दैट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हम लेबल 0 मीन सबसे पहला जो रूट नोड है उसे लेबल 0 असाइन कर दिया. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट द स्पेस. दिस इज गोइंग टू गिव द स्पेस इनटू लेबल. Into label means if we are just starting with label 0, means here in starting we have value 0, so 0 into space is 0 plus self dot value, means the 0th label value doesn't have any space. Okay, the root node is not going to have any space according to this line, and after that we are just going to write the value of that node. This is just for simply used to represent the tree in a proper manner so that you can visualize the value of
or value or like the structure of that tree. Okay, लाइक यहाँ पे जैसे हमने देखा ना कि यहाँ पे हम ट्री बना रहे हैं, तो जैसे रूट है, रूट का चाइल्ड 1 है, उस चाइल्ड 1 के भी चाइल्ड है, फिर उस चाइल्ड 1 के 1.1 के भी चाइल्ड है. सो अगर हम ये स्पेस वाली लाइन नहीं लिखेंगे, सो सिंपली क्या होगा कि हमारे सारे जो भी ये वैल्यूज होंगे पूरे सारे के सारे एक ही कॉलम में प्रिंट हो जाएंगे. सो यू आर नॉट गोइंग टू गिव means like not be able to see the proper overview or the representation of that tree. Okay, so for this I am just using this space line so that you get a proper overview of this tree structure. ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, ट्रैवर्स करते टाइम हर एक चाइल्ड को ट्रैवर्स करके उसकी वैल्यू पुट करनी होती है. सो फॉर दैट वी आर जस्ट गोइंग टू यूज अ लूप फॉर चाइल्ड इन सेल्फ डॉट चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन में जितने भी चाइल्ड होंगे उसमें हम लूप को रन कराएंगे और उसकी वैल्यू को मतलब ट्रैवर्स करते जाएंगे. और हम यहाँ पे लेबल प्लस 1 कर रहे हैं, मीन्स जैसे ही हम एक लेबल से लेबल 1 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ लेबल प्लस 1 हो जाएगा. सो जैसे कि अगर लेबल 0 से अगर हम एक लेबल अंडर गए, उसके अंडर हमने चिल्ड्रेन बनाया, तो ये लेबल प्लस 1 हो गया, मीन्स ये 1 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू 1 इटरेट होके आ जाएगी. सो 1 इंटू स्पेस मीन्स एक स्पेस आएगा. अगर हम सेकेंड लेवल पे चले गए, सो लेबल मतलब ये 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, जब 1 + 1 2 हो जाएगी, तो 2 इंटू लेवल मीन्स 4 स्पेसेस आएंगे, so that we can get a clear overview or clear picture of the tree. Okay, after if name equals to main, this is just a simple script for checking that our code is running directly or imported. So this is just for checking that the module is imported or not. आफ्टर दैट अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम वैल्यूज असाइन करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमने रूट नोड पे एक वैल्यू दे दी रूट. ओके, रूट नोड की वैल्यू हमने रूट असाइन कर दी. फिर चाइल्ड 1 2 3, अब रूट के हमने 3 चाइल्ड बनाए. ओके, रूट, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 एंड चाइल्ड 3. चाइल्ड 1 में हमने क्या किया, चाइल्ड 1 दे दिया, चाइल्ड 2 दे दिया, चाइल्ड 3 वैल्यू. अब जैसे हमने रूट बना लिया, उसकी वैल्यू दे दी, चाइल्ड 1 बनाया हमने, उसकी वैल्यू दे दी, चाइल्ड 2 बनाया, चाइल्ड 3. अब नाउ हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे. ओके, लाइक रूट से हम चाइल्ड्स को कनेक्ट कैसे करेंगे. सो फॉर दिस हमने ये फंक्शन बनाया था ऐड चाइल्ड वाला. वी सिंपली जस्ट यूज दिस फंक्शन बिकॉज दिस फंक्शन हैज अपेंड फंक्शन. सो रूट डॉट एड चाइल्ड. सो रूट में क्या होगा, चाइल्ड 1 ऐड हो जाएगा, फिर चाइल्ड 2, फिर चाइल्ड 3 ऐड हो जाएंगे. सिंपली अब हम चाइल्ड 1 के अंडर भी चाइल्ड बना रहे हैं, तो चाइल्ड 1.1 बना दिया, फिर चाइल्ड 1 के अंदर चाइल्ड 1.2 बना दिया, चाइल्ड फिर जो हमने चाइल्ड 2 के अंदर क्या बनाया, चाइल्ड 2.1, फिर चाइल्ड 3 के अंदर हमने बनाया चाइल्ड 3. फिर हमें उसको भी इसी तरह ऐड ऑन करना होगा चाइल्ड 1 2 3 से. तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड 1 डॉट एड चाइल्ड, चाइल्ड 1 डॉट एड चाइल्ड, क्योंकि हम ये चाइल्ड 1.1 और 1.2 को हम किसके अंडर ऐड करना चाहते हैं, चाइल्ड 1 के अंदर. तो हम चाइल्ड 1 के अंदर में वो ऐड फंक्शन को यूज करेंगे. ओके, सो ये हमारा इसके अंडर ऐड हो जाएगा, इसके अंडर. सिमिलरली ये जैसे हमारा लेबल 1 कंप्लीट हुआ, ये लेबल 2 कंप्लीट हुआ. सिमिलरली लेबल 3 में हम क्या करेंगे, जैसे हमने चाइल्ड 1.1 क्रिएट किया था, अब उसके अंदर 1.1.1 क्रिएट किया. सो सिमिलरली जैसे हमने इसमें किया था, सिमिलरली हम उसको ऐसे करके फिर रूट डॉट ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल कर देंगे. सो आफ्टर दिस वी आर गेटिंग दिस आउटपुट. सो ये आउटपुट समझ आ रहा है, जैसे हमने रूट सबसे पहले दिया, रूट के चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 आए. चाइल्ड 1 के अंदर हमने दो चाइल्ड बनाया था, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 1.1 और 1.2. फिर चाइल्ड 1.1 के अंदर हमने एक और चाइल्ड बनाया था. तो ये इस तरह से हमारा दिख रहा है. ओके, सो इज दिस क्लियर. ये समझ आया, ये एक सिंपल कैसे हम एक ट्री को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ये उसका कोडिंग है. इज इट क्लियर. ओके, कोड यहाँ पेस्ट कर दीजिए. मैम इसका डायग्राम कैसे बनेगा. ओके,
लाइक हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, रूट नोड की वैल्यू रूट दे दी। ओके, सो यहाँ पे हमें जैसे रूट मिला, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, रूट में हमने क्या किया, चाइल्ड 1 2 3 किया, क्योंकि रूट के अंदर में हम ऐड चाइल्ड कर रहे हैं, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा बनेगा चाइल्ड 1, देन चाइल्ड 2, देन चाइल्ड 3। ओके, आफ्टर दैट यहाँ क्या हो रहा है, जैसे हमने अब फिर उसके नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड 1 डॉट ऐड चाइल्ड, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चाइल्ड 1 के अंडर में ऐड कर रहे हैं, फिर चाइल्ड 1 के अंडर में ऐड कर रहे हैं, फिर चाइल्ड 2 के अंडर ऐड कर रहे हैं, फिर चाइल्ड 3। मतलब चाइल्ड 1 के अंडर हमने दो चाइल्ड बनाया, चाइल्ड 1.1 और चाइल्ड 1.2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, चाइल्ड 1.1 एंड देन चाइल्ड 1.2। ओके, फिर चाइल्ड 2 के अंडर में हमने क्या किया था, जस्ट हियर चाइल्ड 2 के अंडर हमने एक ही चाइल्ड बनाया था, चाइल्ड 2.1। ओके, सो चाइल्ड 2 के अंडर में बनेगा चाइल्ड 2.1। ओके, देन आफ्टर दिस चाइल्ड 3 के अंदर में भी हमने एक चिल्ड्रन बनाया था, सो हियर वी हैव चाइल्ड 3.1। ओके, आफ्टर दैट थर्ड लेवल में हमने क्या किया, चाइल्ड 1.1.1 बनाया हमने चाइल्ड 1 के अंदर में। देखो चाइल्ड 1.1 डॉट ऐड मीन्स चाइल्ड 1.1 जो है उसके अंदर में हम एक और चिल्ड्रन को ऐड कर रहे हैं, सो हियर वी आर गोइंग टू हैव child 1.1.1। okay, okay, and after that child 2.1 dot add child means child 2.1 के अंडर में हम एक चाइल्ड और ऐड कर रहे हैं, child 2.1.1, child 2.1.1। okay, so root is label 0, this is label 1, this is label 2 and this is label 3। okay, so this is the representation of this diagram। is it clear now? Every one of you? Is this program is clear to you all? सिंपल ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम कैसे फॉर्म करेंगे रूट और उसके चाइल्ड्स, ये समझ आया सबको? एवरीवन, आर यू हियरिंग, ऑल ऑफ यू? समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, सो दिस इज क्लियर। So similarly, can you draw a simple data structure for a company, means tree data structure for a company to show the hierarchy of a company? Like वहाँ CEO होता है, CEO होता है, फिर उसके अंडर में कुछ मैनेजर्स होते हैं, फिर मैनेजर्स के अंडर में कुछ एम्प्लॉयज होते हैं। समझ आ रहा है व्हाट आई वांट टू से? जैसे मैंने एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर बनाया, सिंपली रूट है और उसके चाइल्ड्स हैं, तो इसी तरह से हमारे कंपनी में भी होता है ना कि रूट जो होता है वो हमारा सीईओ होता है और उसके कुछ सब ऑर्डिनेट्स होते हैं जिनके कुछ मैनेजर्स होते हैं, फिर उस सब ऑर्डिनेट्स के अंदर कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं। सो कैन यू ड्रॉ द ट्री डेटा स्ट्रक्चर फॉर दैट कंपनी? स्टूडेंट, are you getting my question? Just try to draw a tree data structure for a company where you have to show a company CEO as root node
and after that the managers for the subordinate like head sales, marketing, tech department, and under these departments some employee are working as developers, tech lead, etc. No one of you are replying. I'm okay trying. Okay, so all of you just try to solve this.
Yes, Roshan, you are right. Anyone else who are still trying? Okay, just all of you see this. Okay, so here what we are doing, like हम सबसे पहले एक एम्प्लॉय नोड से एक क्लास बना लिया हमने. Okay, after this we are just initializing a function where we are going to give the name of that person and the position. Okay, हमें यहाँ पे दो चीज चाहिए होगी, नेम और पोजीशन, और एक नेक्स्ट जैसे हम उसमें चाइल्ड क्लास क्रिएट करते थे, यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, लाइक कि हर एक पोस्ट के बाद उसके सब ऑर्डिनेट्स आएंगे. सो वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ एम्प्टी लिस्ट लाइक वी आर क्रिएटिंग फॉर द चाइल्ड नोड. हियर वी आर क्रिएटिंग फॉर द सब ऑर्डिनेट्स टू स्टोर द सब ऑर्डिनेट्स फॉर दैट नोड. ओके, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, डिफाइन किया उसके सब ऑर्डिनेट्स को ऐड कैसे करेंगे, जैसे हम चाइल्ड्स को ऐड करते थे सिंपली अपेंड फंक्शन यूज करके. आफ्टर दैट जैसे हम डिस्प्ले करते थे ऊपर, सेम हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया, बस यहाँ पे हम थोड़े से उसके नाम और चीजों को थोड़ी सी स्पेसिफाई कर रहे हैं सो दैट इट लुक्स लाइक अ कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर. ओके, आफ्टर दैट हमने क्या किया, सीईओ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम हमने एलिस दे दिया. सो एलिस इज एट द पोजीशन ऑफ सीईओ, मींस दिस इज द रूट नोड. ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, मैनेजर्स बनाएंगे. मैनेजर्स जैसे हमने तीन डिपार्टमेंट बना लिया, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट. ओके, सो यहाँ पे हमें तीन वो हो गया, तीन डिपार्टमेंट्स हैं. तो यहाँ पे हमने जैसे हेड सेल्स बनाया एम्प्लॉय नोड, उसका नाम हमने दे दिया बॉब और वो हेड ऑफ सेल्स है. इसी तरह चार्ली वो हेड ऑफ मार्केटिंग है, उसी तरह डेविड वो हेड ऑफ टेक्नोलॉजी है. अब ये नोट्स हमने सिर्फ क्रिएट किया उसके नाम और उसकी पोजीशन देके. नाउ हाउ कैन वी add this nodes to the root node? For this we are going to use this add subordinates function. Okay, like हम CEO हमारा रूट नोड है, हम उस रूट नोड में सबऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे. सो सीईओ डॉट एड सबऑर्डिनेट्स में हेड सेल्स कर दिया, फिर हमने हेड मार्केटिंग कर दिया, फिर हेड टेक कर दिया. तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि एक सीईओ था, वहां पे तीन मैनेजर्स बन गए. ठीक है, आफ्टर अब हम क्या करेंगे, उस मैनेजर्स में हम एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे. सो हमने जैसे सेल्स में क्या किया, सेल्स में एग्जीक्यूटिव नंबर 1, एग्जीक्यूटिव नंबर 2, उसका नाम हमने ईवा और फ्रैंक दे दिया. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड सेल्स डॉट एड सबऑर्डिनेट, क्योंकि अब हम सेल्स वाले सेल्स वाली जो भी कंडीशन है उसके अंडर हम एम्प्लॉयज को ऐड कर रहे हैं. तो हेड सेल्स डॉट ऐड सबऑर्डिनेट सेल्स एग्जीक्यूटिव 1, सेल्स एग्जीक्यूटिव 2. आफ्टर दैट अब हम जो मैनेजर मैनेजर ऑफ द टेक टेक मीन्स हम जिस टेक कंपनी जो भी है उसके अंडर में हम अब चाइल्ड्स और उसके सबऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे. सो यहाँ पे हमने क्या किया, डेवलपर 1 और डेवलपर 2 को ऐड किया टेक के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल के लिए. सो यहाँ पे हमने क्या किया, हेड टेक डॉट एड सबऑर्डिनेट, क्योंकि हम यहाँ हेड टेक के अंडर में चिल्ड्रंस को ऐड कर रहे हैं. सिमिलरली हम
क्या कहते हैं, डेवलपर 1 और डेवलपर 2 को टेक लेड के अंडर में ऐड कर रहे हैं, तो टेक लेड डॉट एड सब ऑर्डिनेट्स करेंगे। आफ्टर दैट हम प्रिंट कर देंगे उसकी हायरार्की को। So here what we are getting the outputs like CEO Alice, this is the root node. root node के अंदर हमने 3 बनाया था, head of sales, head of marketing और head of technology। head of sales के अंदर में हमारा sales executive हमने 2 एम्प्लॉय को रखा। head of marketing के अंदर हमने एक भी एम्प्लॉय को नहीं रखा है। head of technology जो है उसका नाम डेविड है। डेविड जो है टेक्नोलॉजी के अंडर में हमने एक अनदर जो भी एम्प्लॉय को रखा वो टेक लेड था। ठीक है, फिर टेक लेड के अंदर हमने एक और सब चाइल्ड क्रिएट किया जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ओके, सो यहाँ पे 3 लेवल ऑफ हायरार्की हमने बनाया है। इज दिस क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? All of you just trying to do so but want to be able to do. So I have just given the solution. So just check this out. Is it clear? What are the issues that you have so you want to be able to program for that? क्या प्रॉब्लम आ रही थी जो कि हुआ नहीं? Are you listening? Students, are you listening? No one of you are replying. What? Yes, ma'am. Are you able to try to? Are you able or tried or what you have did to solve this problem? किसी का हुआ? क्या इश्यूज आ रहे थे? जैसे सिंपली हमने वो पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, पेरेंट्स बनाया था, उनके चाइल्ड्स बनाए थे, सिंपली इसमें भी वही करना था। Okay, so now next what we are going to do, we are going to study about the traversal of the tree. Okay, so BFS DFS पता है? What is breadth first search and depth first search? How can we traverse a tree? Sir has taught BFS DFS in the class, in theory class. Am I audible to you all? Sir has taught BFS and DFS in the class.
क्लास करने का मन नहीं है? किसी को समझ आ रहा है कि नहीं? What? Yes, ma'am. What have I asked? That sir has taught BFS and DFS in the class or not? If yes, then reply what is BFS and DFS. Someone of you are saying yes, ma'am, and someone of you are saying no, ma'am. Okay, let's see. What is BFS, DFS? So what is BFS? BFS is just a technique for the tree traversal, and DFS is also a technique for the tree traversal. Okay. Sir had taught BFS, DFS. Okay, so you all of you have the idea about BFS, DFS. So I am just going to give a brief idea. Then we are going to head towards the coding part. Okay. Okay. So tree traversal. What is tree traversal? Basically, tree traversal is the process of just visiting all nodes. Tree traversal मतलब हम traverse करना चाहते हैं. Like process of visiting all nodes in a tree data structure in a specific order. So specific order हमें BFS के थ्रू भी मिलता है, DFS के थ्रू भी मिलता है, but both are the different techniques to traverse. Okay. So BFS में हम क्या करते हैं? BFS का full form क्या होता है? Breadth First Search. Okay. It is also known as level order traversal. ओके. सो लेवल और ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. सो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, इन दिस वी जस्ट विजिट ऑल नोड्स एट द करेंट लेवल बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल. जैसे अभी हम लेवल 0 पे खड़े हैं, तो हम लेवल 0 पे जितने भी नोड्स होंगे पहले उसको ट्रैवर्स करेंगे. आफ्टर दैट लेवल 1 पे जितने नोड्स होंगे उनको ट्रैवर्स करेंगे, देन हम लेवल 2 की तरफ मूव करेंगे, देन लेवल 3 के साइड मूव करेंगे. सो अगर हमें इसका BFS ट्रैवर्सल करना होगा, सो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? जस्ट गिव मी द आउटपुट फॉर दिस BFS ट्रैवर्सल ऑफ दिस ट्री. सर ने बताया है ना, सो जस्ट रिप्लाई. What is the BFS traversal of this tree? What is the BFS traversal of this tree? आउटपुट क्या आएगा अगर हम इसको BFS मेथड से ट्रैवर्स करना चाहें, अगर हम इस ट्री को? वन टू सेवन थ्री सिक्स एट फोर फाइव नाइन. ओके. एनीवन एल्स? और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि लेवल वाइज ट्रैवर्स करना होता है हमें BFS में?
Yes. So here we got 1. लेवल 0 पे सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे तो 1, देन लेवल 1 पे आएंगे so we have 2 nodes, 2 and 7. Okay, after this we are heading towards the level 3. Level 3 में क्या है? 3, 6, 8 and 10. So 3, 6, 8 and 10. Okay, after this level 4. Level 4 में we have three nodes, 4, 5, 9. So 4, 5 and 9. So this is the BFS traversal. इसमें हम लेबल वाइज ट्रैवर्सल करते हैं. ओके, इज इट क्लियर? BFS ट्रैवर्सल ये मिस हो गया था. नो इश्यूज. नाउ इज इट क्लियर? क्योंकि BFS ट्रैवर्सल का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा सो यू वॉन्ट बी एबल टू डू द प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ BFS ट्रैवर्सल. Okay, so just see the coding of BFS traversal. Okay, सो इन BFS ट्रैवर्सल हमें क्या करना होता है कि लेबल वाइज ट्रैवर्सल करना होता है. तो ये तो पता है आपको कि हम डिफाइन करते हैं ट्री नोड को, उसकी वैल्यू और उसके चिल्ड्रन के लिए एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं. देन ऐड चाइल्ड के लिए हम चिल्ड्रन डॉट अपेंड फंक्शन यूज करते हैं. बट अगर हमें BFS ट्रैवर्सल करना है तो हम कैसे करेंगे? लाइक अभी हमने जो, ओके जस्ट लीव इट, आई विल टोल्ड यू अबाउट दैट लेटर. सो BFS ट्रैवर्सल के लिए हमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है. सो हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़ रखा है. What is the concept of queue data structure? Queue is using FIFO or LIFO? याद है? Queue is using FIFO or LIFO data structure. Yes, FIFO. So first in, first out. So we are going to use the concept of queue in BFS traversal. Okay. So यहाँ पे हमने क्या किया? हमने एक BFS traversal का function define करेंगे where we are going to have a queue with the self value, and after this, yes, after this what we are going to, we are going to have a loop में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने एक क्यू बना लिया अपने लिए. क्यू में हम सबसे पहले सेल्फ से इनिशियलाइज कर रहे हैं, मीन्स रूट नोड को उस क्यू में रख देंगे. तो क्यू में सबसे पहला इन करेंगे हम रूट नोड को. आफ्टर दैट क्या होगा? करेंट इक्वल्स टू क्यू डॉट पॉप. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे क्यू में पहला एलिमेंट, मतलब क्यू में जो भी एलिमेंट होंगे उनको पॉप करेंगे. तो पॉप करेंगे तो मीन्स जो भी हमने फर्स्ट इन किया होगा वही हमारा फर्स्ट आउट होगा. तो मीन्स हमने जैसे रूट नोड को फर्स्टली इन कर दिया था क्योंकि हमने रूट नोड से इनिशियलाइज किया था. तो क्यू डॉट पॉप में क्या होगा कि हमारा रूट नोड आउट होगा. ओके, सो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे. बट जैसे हम उसकी वैल्यू को पॉप करेंगे हमारा ये लूप रन होगा. In this what we are going to have, for child in current dot children, means जो भी current वैल्यू पॉपअप हुई है उसके जो भी चिल्ड्रेन होंगे उनको हम उस क्यू में अपेंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फंक्शन. मतलब अगर उस रूट नोड के 3 चिल्ड्रेन हैं तो तीनों चिल्ड्रेन को हम उसमें उस क्यू में अपेंड कर देंगे. मीन्स फिर उसमें इंसर्शन होगा. यहाँ पे हम डी क्यू कर रहे हैं बट यहाँ पे हम एन क्यू कर रहे हैं. तो उसके 3 चिल्ड्रेन है तो तीनों हमारा उस BFS में एन क्यू हो जाएंगे. फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद फिर से ये लूप रन होगा. फिर जो भी हमारा पहला एलिमेंट होगा वो आउट होगा. ओके, तो जैसे ही हम जो भी एलिमेंट आउट करेंगे फिर उसमें चेक करेंगे उसके जितने भी चिल्ड्रेन होंगे उनको हम फिर से उस क्यू में एन क्यू कर देंगे. सो इन द सिमिलर मैनर जो भी हमारे एलिमेंट्स फर्स्ट मतलब क्यू में रहेंगे, जैसे ही वो पॉप होंगे उनके चिल्ड्रेन एन क्यू होंगे. फिर वो उसका पहला एलिमेंट डी क्यू होगा, फिर उनके एलिमेंट एन क्यू होंगे. सो बाय using this concept we can do the traversal in label order. Okay,
यहाँ पे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया क्यू का। आफ्टर दैट तो हम जैसे मतलब कर रहे थे सिंपली वैसे ही कर रहे हैं। रूट चाइल्ड नोड लिया, फिर उसको रूट में ऐड किया, फिर चाइल्ड 1 लिया, उसमें उसके चाइल्ड्स को चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 में ऐड किया, फिर चाइल्ड 1 में उसके चाइल्ड्स को ऐड किया। सिमिलरली जैसे हम करते हैं वैसे कर रहे थे। उसके बाद हम बीएफएस ट्रैवर्सल को प्रिंट करेंगे। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू, यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले रूट, फिर चाइल्ड 1 2 3, मतलब उसके तीनों चाइल्ड्स ट्रैवर्स हुए, मीन्स लेबल 0 पहले हुआ, फिर चाइल्ड 1 2 3 मीन्स लेबल 1 कंप्लीट हुआ, फिर 1.1 1.2 मीन्स लेबल 3 कंप्लीट हुआ, ये चारों एलिमेंट्स, फिर लेबल 4। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल हो रहा है। Okay, so this is the concept of BFS traversal by using the queue concept. Is it okay? Okay, quote. Everyone, is it clear to all of you? This BFS traversal concept. जैसे अभी हमने ऊपर में पढ़ा था, ये जो भी हम ये ट्रैवर्सल किया था, इसमें हम क्या कर रहे थे, पहले रूट, फिर चाइल्ड 1, फिर उनके सारे चाइल्ड्स को ट्रैवर्स कर रहे थे बिल्कुल लीफ नोड तक, फिर हम नेक्स्ट रूट, नेक्स्ट चाइल्ड पे जा रहे थे, फिर उनके सारे चाइल्ड्स को ट्रैवर्स कर रहे थे, फिर हम नेक्स्ट चाइल्ड पे जा रहे थे, फिर उनके सारे चाइल्ड्स को ट्रैवर्स कर। सो दिस इज द काइंड ऑफ डीएफएस ट्रैवर्सल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द पीएफएस ट्रैवर्सल, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, रूट, देन चाइल्ड 1 2 3, पहले एक लेबल के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया, फिर नेक्स्ट लेबल के, फिर उसके नेक्स्ट लेबल के। ओके, सो दिस इज बीएफएस ट्रैवर्सल। बट हमने जो पहले किया था, व्हाट इज दिस, दिस इज डीएफएस ट्रैवर्सल। ओके, ओके, सो क्लियर। ओके, सो बीएफएस ट्रैवर्सल इज क्लियर। नाउ डीएफएस, डीएफएस का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, so in depth first search, what we have in this, we you have to start at the root node and explore as far down a branch as possible. Okay, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूट नोड से स्टार्ट किया, फिर उसके जितने भी ब्रांचेस हम डाउन साइड में एक्सप्लोर कर सकते हैं, पहले उनको एक्सप्लोर करके देन हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ओके, बीएफएस में क्या था कि हमने रूट नोड से स्टार्ट किया, फिर हम उसके नेक्स्ट नोड पे गए, फिर उसके नेक्स्ट पे नहीं जाते, पहले उस लेवल में जितने थे उनको ट्रैवर्स किया। बट इसमें एज फॉर एज पॉसिबल हो पाएगा, हम उतना डाउनवर्ड साइड में ट्रैवर्स करके देन उसके बाद हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे। ओके, सो जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया तो 1 पे जाएंगे, फिर 1 से भी हमारे पास अभी नोड है 4, 4 के नीचे हमारे पास कोई नोड नहीं है, तो फिर हम बैकवर्ड ट्रैवर्स करेंगे। फिर 1 के बाद क्या है हमारे पास 5, 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 5 तक ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम बैकवर्ड जाएंगे, तो 5 1 हमारा हो चुका है, 0 हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, देन वी आर गोइंग टू गेट 2, 2 के बाद फिर हम जाएंगे 6, 6 के बाद कुछ नहीं है, देन वी आर हेडिंग बैक। ओके, बैक बैक गए, 0 ट्रैवर्स हो चुका है, फिर नेक्स्ट में देखेंगे 3, देन 3 के बाद 7। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएफएस। इसका आउटपुट क्या आएगा, 0, देन 1, देन 4, देन 4 से बैक करेंगे 1, तो क्योंकि 1 हम लोग ट्रैवर्स कर चुके हैं, देन वी गेट 5, 5 के बाद फिर जब बैक करेंगे 1, 1 के बाद फिर 0, 0 के बाद हमने क्या देखा 2, तो 2 आ गया, देन 2 के बाद 6, देन 3, देन 7। ओके, दिस इज डीएफएस ट्रैवर्सल। इज इट क्लियर, बीएफएस एंड डीएफएस ट्रैवर्सल? Any confusion in BFS and DFS? Coding part already we have seen, DFS part हमने पहले देख लिया था, BFS अभी देख लिया। Okay, where are the other people?
सबको क्लियर है BFS DFS पार्ट एंड उसकी कोडिंग? क्योंकि जो पहले हमने कोडिंग किया था ट्री का वो हमारा DFS का था, फिर अभी हमने BFS का कोडिंग कर लिया। सो BFS DFS इज ओवर। BFS में हम क्या करते हैं, लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं, बट DFS में हम एज फार डाउन मूव करते जाएंगे जब तक कि हम पॉसिबली लोवेस्ट पार्ट तक ट्रैवर्स नहीं कर लेते, देन हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे। ओके, so in DFS what we have three more concepts like pre-order, post-order and in-order traversal. Okay, so just see. Okay, so in-order traversal में क्या होता है? In order means नाम से पता चल रहा है, in means बीच में. Okay, so in order means root is in the middle part. Okay, पहले हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, देन रूट ट्रैवर्स होगा, देन राइट सब ट्री ट्रैवर्स होगा. ओके, एंड इन प्री ऑर्डर, प्री मीन्स पहले, प्री आ गया वर्ड तो मीन्स रूट को हम पहले ट्रैवर्स करेंगे, फिर लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री. सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मीन्स पोस्ट वर्ड मीन्स हम रूट को सबसे लास्ट में ट्रैवर्स करेंगे, मीन्स लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, देन रूट. ओके, so these are the three main concepts of the DFS traversal in which we have in order, pre order and post order. नाम से ही आपको पता चल रहा है कि in order means रूट को हम बीच में ट्रैवर्स करेंगे, प्री ऑर्डर प्री मीन्स रूट को हम पहले ट्रैवर्स करेंगे, एंड पोस्ट ऑर्डर मीन्स रूट को हम बाद में ट्रैवर्स करेंगे. ओके, ओके, so what we are going to get in this after in order traversal? Sir has taught in order, pre order and post order in the class. Okay, so just tell me what is the traversal, in order traversal for this tree? DP. Okay, okay, so DBF. Yes, okay. So let's see. So in order traversal में क्या करते हैं हम, जैसे अगर हम assume करें, so like there is a line. Okay, let's assume there we have a line here, then here, then here, then here, means डाउनवर्ड साइड में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर ले, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा. ओके, देन बी मिलेगा, अगर हमने डाउनवर्ड साइड में एक लाइन ड्रॉ की हुई है, देन हमें डी मिलेगा, देन हमें बी मिलेगा, देन हमें ई मिलेगा, आफ्टर दैट वी गॉट ए, देन एफ, देन सी, देन जी. तो सबसे पहले हमें क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना होता है. तो हमने लेफ्ट सब ट्री में भी क्या करेंगे, जैसे लेफ्ट सब ट्री हमारे पास ये पोर्शन है, सो इन दिस आल्सो व्हाट वी आर हैविंग, नोड मतलब रूट नोड, देन लेफ्ट, देन राइट. तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट आएगा डी, देन वी हैव बी, देन वी हैव ई. सो हमारा लेफ्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है. देन वी हैव रूट नोड अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, फर्स्ट ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री, देन रूट नोड. सो वी हैव रूट नोड ए, then after that we have to traverse the right subtree. In right subtree we also have root node, then left, then right. So first traverse left side, then root node, and then right node. Okay,
So this is in order traversal. नेक्स्ट वन इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. प्री ऑर्डर में हमें क्या होता है, रूट को सबसे पहले ट्रैवर्स करना होता है. सो अगर हम इसमें सिंपली अगर हम अज्यूम करें कि हमने ऐसे लेफ्ट साइड में एक लाइन ड्रॉ की हुई है ऐसे सारे नोट्स में, ओके ऐसे करके हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले ए मिलेगा क्योंकि रूट नोड हमें सबसे पहले ट्रैवर्स करना है. सो वी आर गोइंग टू हैव ए. आफ्टर दिस हमें लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करना है, देन राइट सब ट्री ट्रैवर्स करना है. तो लेफ्ट सब ट्री में भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रूट को, लेफ्ट सब ट्री के अंडर में भी हमें सबसे पहले रूट को ट्रैवर्स करना होगा. सो वी आर गोइंग टू हैव बी, देन वी आर गोइंग टू हैव डी, रूट हो गया, देन लेफ्ट सब ट्री मीन्स डी, देन मीन्स ई. ओके, then we have to move to the right subtree. In right subtree also we have to follow the same pattern, means सबसे पहले root. So right subtree में root क्या है, C, then left subtree means F, then right subtree means G. Okay, okay. And in post order traversal we have to first traverse the left subtree, then right subtree, then root. ओके, सो हम सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री में ट्रैवर्स करेंगे. लेफ्ट सब ट्री में हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री के अंडर में भी हमें यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे. तो लेफ्ट सब ट्री में भी सबसे पहले हमें लेफ्ट नोट्स को ट्रैवर्स करना होगा. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डी, देन राइट पोर्शन ई, देन रूट. द रूट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज बी. ओके, आफ्टर दिस वी हैव टू ट्रैवर्स द राइट सब ट्री. राइट सब ट्री में भी हमें यही क्या कहते हैं, यही पोर्शन फॉलो करना होगा, लेफ्ट सब ट्री, देन राइट, देन रूट. सो हियर लेफ्ट इज एफ, then right is G, and after that we have node of the right subtree is C, and at last we have the root of the whole tree, that is A. Okay, so this is the post order traversal. Okay, so these are the three types of DFS traversal. So is it clear? Okay, so all these traversals are clear to you all? Okay. तो हमने BFS ट्रैवर्सल की कोडिंग देख ली थी. DFS ट्रैवर्सल जो हमने पहले कोडिंग की थी वो हमारा क्या था, DFS ट्रैवर्सल था. ओके, नाउ we are going to see the in order, pre order and post order traversal, how to do the coding of this. Okay, so basically हमने जैसे देखा इन थ्योरी. ओके, सो फॉर मैम कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है बट कोडिंग करने में प्रॉब्लम. सो फॉर दिस यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. Practice is only the solution of your problem. Okay, so just try to see. मीन्स हमने देखा कि अगर हम जैसे भी ट्रैवर्सल कर रहे थे, जैसे हमारा था कि इन ऑर्डर में था कि हमने सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स किया, फिर रूट, देन राइट सब ट्री. ओके, सो उसमें क्या हो रहा था, अगर हम जब राइट सब ट्री को भी ट्रैवर्स कर रहे थे तो भी हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे थे, लाइक राइट लेफ्ट पोर्शन, देन रूट, देन राइट. फिर जब हम राइट सब ट्री को भी ट्रैवर्स कर रहे थे फिर भी हमें वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, लाइक लेफ्ट, देन रूट नोड, देन राइट वन. So this is a kind of recursion.
मीन्स हम एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे, मतलब लेफ्ट सब ट्री के लिए भी हम वही इन ऑर्डर के फंक्शन को कॉल करेंगे जहाँ पे कि हमें पहले लेफ्ट देन रूट देन राइट को ट्रैवर्स करना है। फिर जब हम राइट पोर्शन को ट्रैवर्स करेंगे तो फिर हम उसी फंक्शन को कॉल करेंगे इन ऑर्डर के, जिसमें कि हम पहले लेफ्ट देन मिडिल वन मीन्स रूट नोड देन राइट सब ट्री। ओके, सो इसमें हमें सिंपल सा एक फंक्शन बनाना होता है, बस उसको रिकर्सिवली कॉल करना होता है। ओके, सो जस्ट सी यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली एक नोड बना लिया, उसमें हमने सेल्फ, उसमें हमें दो वैल्यूज चाहिए होंगी जैसे लेफ्ट एंड राइट, तो हमने सेल्फ डॉट लेफ्ट और सेल्फ डॉट राइट को नन नन से इनिशियलाइज कर दिया, और सेल्फ डॉट वैल्यू हमने पहले रूट की वैल्यू दे दी है। ओके, फॉर दिस। ओके, तो यहाँ पे हमने तीन फंक्शन बनाया, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर के लिए। तो इन ऑर्डर में हमने देखा था क्या होता है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जब तक रूट नन ना हो जाए, इफ रूट इज नॉट नन देन तब तक ये सारे फंक्शंस उसके अंदर के कॉल होंगे, जैसे ही रूट नन हो जाएगा तो हम एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देंगे। ओके, so root is not none, so after this what we are going to do, we are going to call in order with root dot left value। okay, जो लेफ्ट वाला, क्योंकि हमें क्या पता है इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट देन रूट देन राइट, लेकिन पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट पोर्शन देन राइट पोर्शन देन रूट पोर्शन। ओके, प्री ऑर्डर में क्या होता है कि हम रूट को सबसे पहले ट्रैवर्स कर लेते हैं, देन लेफ्ट पोर्शन देन राइट पोर्शन, तो सिंपली हमें बस वही कॉल करना है। इन ऑर्डर में हमने क्या किया, रूट डॉट लेफ्ट वैल्यू कॉल की, उसको प्रिंट किया, देन उसमें हम उसके बाद हम राइट पोर्शन पे कॉल करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, मतलब हम रूट डॉट लेफ्ट को तब तक कॉल करते रहेंगे जब तक कि हम लास्ट में नहीं पहुंच जाते, फिर हम उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे, रूट उसकी वैल्यू रूट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, देन रूट डॉट राइट फंक्शन में इन ऑर्डर को कॉल करें। मीन्स हमने इन ऑर्डर फंक्शन एक बार बनाया है, हम उसे रिकर्सिवली कॉल करते जा रहे हैं, बस इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, फिर रूट की वैल्यू देन राइट। इन पोस्ट ऑर्डर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, रूट डॉट लेफ्ट वैल्यू फॉर द पोस्ट ऑर्डर फंक्शन, then post order function for root dot right, after that we are going to root dot value function। okay, similarly प्री ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, रूट वैल्यू, उसमें क्या होता है प्री ऑर्डर में हम रूट की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट करते हैं, तो रूट वैल्यू देन लेफ्ट वैल्यू देन राइट वैल्यू। मीन्स प्री ऑर्डर फंक्शन में बस हम वैल्यूज को लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं, फिर राइट ट्रैवर्स कर रहे हैं, उससे सबसे पहले रूट वैल्यू को ट्रैवर्स कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द सिंपल फंक्शन। मीन्स इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, बस सिंपल सा एक फंक्शन बना के उसे रिकर्सिवली कॉल करना होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रूट डॉट नोट की वैल्यूज असाइन कर दी, लाइक रूट में हमने ए दे दिया, रूट डॉट लेफ्ट में हमने बी दे दिया, रूट डॉट राइट में हमने सी दे दिया, जैसे हमारा जो ट्री बना हुआ था, मीन्स हमने दिखाया था मैंने ट्री वाले फंक्शन में, ए बी सी डी करके, ए यहाँ था, देन बी देन सी देन डी ई देन एफ जी ऐसे करके था। सो रूट डॉट लेफ्ट करके हमने वैल्यू असाइन कर दी, रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट करके हमने वैल्यू असाइन कर दी, देन रूट डॉट राइट डॉट लेफ्ट, मीन्स यहाँ पे ए था यहाँ बी था, तो बी के रूट डॉट राइट डॉट लेफ्ट, तो हमारा वहां पे एफ जी। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में इन ऑर्डर में रूट की वैल्यू, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, सिंपली फंक्शन को कॉल करना होता है हमें। सो हियर वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट। ओके, जो मैंने अभी थ्योरी कॉन्सेप्ट बताया था सिंपली वो फिगर दिखा के, सेम उसी चीज को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, सेम वही ए बी सी डी वैल्यूज लेके हमने ट्रैवर्स किया, एंड जस्ट सी द सेम आउटपुट वी आर गेटिंग हियर, दैट वी आर गेटिंग इन दैट पीडीएफ, द सेम आउटपुट वी आर गेटिंग हियर। सो इज दिस क्लियर? ये वाला कोडिंग पोर्शन क्लियर है? जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था सिंपली बस हम वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। ओके, इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, सबसे पहले हम लेफ्ट देन वैल्यू देन राइट, पोस्ट ऑर्डर में क्या कहते हैं, लेफ्ट राइट देन वैल्यू, एंड प्री ऑर्डर में क्या कहते हैं, सबसे पहले रूट कर देते हैं देन लेफ्ट देन राइट, फिर उसके बाद हमने वैल्यूज असाइन करी है नोट्स की, एंड आफ्टर दैट हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। ओके, all of you getting this or not?
किसी को समझ नहीं आ रहा है? एटलीस्ट नो ही बोल दो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन वंस अगेन। और क्या इशू आ रहा है? ओके, क्लियर है। ओके, सो ट्रैवर्सल इज टोटली क्लियर ना? सो आज हमने ट्री पढ़ा, ट्री के बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखे, बाइनरी ट्री के डिफरेंट टाइप्स देखे, एंड आफ्टर दैट बीएफएस ट्राइवर्सल, डीएफएस ट्राइवर्सल। बीएफएस ट्राइवर्सल इज सिंपली अ लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल। उसमें हम सिर्फ लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल करते हैं। बट इन डीएफएस वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइवर्सल: इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। Okay, these are some basics and major और मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ट्री डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स ये आपको पता होगा तभी आप नेक्स्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये यूज कर पाएंगे। मीन्स प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो ये बेसिक पार्ट्स और उनकी कोडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। सो जस्ट ट्राई टू डू ऑल दिस once by yours। सो आज के लिए बस इतना ही करें, क्योंकि आधे लोग तो लग रहा है सो रहे हैं या फिर किसी को समझ नहीं आ रहा है। सर हैज शेयर्ड द स्लाइड्स विथ यू ना? मैंने तो बस थोड़े थोड़े डायग्राम्स एक्सप्लेन किए हैं उसमें। सर हैज शेयर्ड द स्लाइड्स विथ यू ऑफ द थ्योरी पोर्शंस ना? इन दैट यू हैव बीएफएस, डीएफएस एंड एवरीथिंग। ओके, ओके, ओके। सो आई विल शेयर दिस स्लाइड्स विथ यू, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल। थैंक यू।